Okay, so we are on the last section for this particular paper, starting with question number 76. So यहाँ पे अगर हम लोग देखें, consider the following statements about the river bridges connecting India with the neighboring countries. तो अब assume ये आप देख सकते हैं कि IR का क्वेश्चन है, bilaterally हम लोग के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हैं, वहां से पूछा गया है. So they are asking project Maitri Setu built over the Feni River connects Ramgarh in India with Sabroom in Bangladesh. So यहाँ पे आई थिंक ये उल्टा किया हुआ है. So ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो ठीक है यहाँ पे कि इट इज बिल्ट ओवर द फेनी रिवर, बट एक्चुअली दिस इज इट कनेक्ट्स रामगढ़ इन बांग्लादेश विद सबरूम इन इंडिया. हाँ, तो यहाँ पे उल्टा करा गया है. दैट्स व्हाई फर्स्ट इज रॉन्ग. सेकंड बोल रहा है ये झूला घाट सस्पेंशन ब्रिज कनेक्ट्स इंडिया विद म्यांमार. सर ये क्या कंट्री होना चाहिए? आई थिंक सर इसकी जगह नेपाल होना चाहिए. इंडिया विद नेपाल. दिस इज कनेक्टिंग इंडिया विद नेपाल. सेकंड इज आल्सो रॉन्ग. Third is Mechi Bridge and its approaches connect Panitanki bypass in India with the Kakarvitta in Nepal. So I think this is correct, right? This is the only statement that is correct. So answer is D three only. So again ये आप देखो तो हम लोग को जनरली इतना पता होता है कि कौन सा ब्रिज कहाँ पे है. मैथिली सेतु हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बट ये जो झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज है और जो मेची ब्रिज वगैरह है, और उसमें भी वो स्पेसिफिक लोकेशन पूछ रहा है कि एग्जैक्टली कौन सी सिटी है, क्या है. तो दिस मेक्स इट अगेन ए वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. आई थिंक है ना, ये बहुत डिफिकल्ट है इस आंसर तक पहुंच पाना. सो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन आई गया. ठीक है, नेक्स्ट सब बताइए. Which of the following statement about a zero first information report under the Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita is are correct? A zero FIR can be lodged at a police station even though the place of commission of a cognizable and non-cognizable offense is outside the territorial jurisdiction of that police station. We know the basic concept of zero FIR is that it can be registered even if it is not that part of that territorial jurisdiction. But the main doubt is that whether it can be registered in the aspect of non-cognizable crime also. सर आई थिंक नो. जैसे अगर हम लोग जब भी पढ़ते हैं, अगर आप इसमें अगर लॉ में जाके भी देखेंगे, तो जीरो FIR इज जनरली फॉर द कॉग्निजेबल ऑफेंस ओनली. So just because of addition of this particular line, non-cognizable, we think that first statement becomes wrong. यहाँ पे सिर्फ cognizable होना चाहिए, बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट यहाँ पे ये एडिशन से रॉन्ग हो जाता है. The officer in charge of the police station where a zero FIR has been lodged may, with the permission of the competent authority, initiate a preliminary inquiry. We have looked into that specific provisions, and yes, there are some provisions where, with the permission of the competent authority, in specific cases, a preliminary inquiry can be initiated. सर आप देखें तो सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, this specifically says that if the offense is of more than 3 years of punishment, then with the permission of DSP, the person can initiate a preliminary inquiry before transferring the case to the concerned jurisdiction. So this statement becomes right here. Third statement, under zero FIR, it is obligatory for the informant to furnish information electronically. The question is whether it is obligatory for the informant. So it is not an obligatory. Wrong. देखिए, कोई भी आप FIR कर रहे हैं, पहली बात तो हम लोग EFIR की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जीरो FIR की बात कर रहे हैं. कोई भी पर्सन है, कुछ क्राइम हुआ है, आप पुलिस स्टेशन में एंटर करके आप अपना ओरल सबमिशन दे सकते हैं, FIR रजिस्टर करवा सकते हैं. तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको इलेक्ट्रॉनिकली ही जो है रजिस्टर करना है. तो ये थर्ड तो डेफिनेटली रॉन्ग है. एज पर अस द आंसर शुड बी D2 ओनली. दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज जहां पे आप ट्रैप हो सकते हैं, या आप फर्स्ट इनको सही मार्क कर सकते हैं, बट ये फर्स्ट गलत है. सेकंड में भी डाउट हो सकता है आपको एग्जाम हॉल में, और थर्ड तो डेफिनेटली रॉन्ग है. सो एज पर अस दिस इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. आंसर इज D2 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट. The similar pattern question was asked last year also, जहां पे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस दिए थे, फंक्शंस दिए थे, कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री दी थी. इस बार ऑर्गेनाइजेशन चेंज किया है, थीम क्वेश्चन की सेम है. सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो to coordinate between various law enforcement agency. Ministry given is Ministry of Home Affairs. So I think this is wrong statement. This is not under Ministry of Home Affairs. This should be Ministry of Finance. देखिए इकोनॉमिक हम लोग ऐसे ही बात करना है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस की, तो होम अफेयर्स नहीं होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा. Serious Fraud Investigation Office to investigate complex corporate frauds, Ministry of Finance. This again is wrong. क्वेश्चन में दिख रहा है सर, देखिए कॉर्पोरेट फ्रॉड्स की बात हो रही है, तो नेचुरली यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होना चाहिए. This Central Bureau of Investigation, this do come under
Ministry of Personal Public Grievance and Pension. But I think this issue is with this function, to preserve values in public life and ensure the health of national economy. I think that this is not directly related to CBI. So this is the function of CVC, Central Vigilance Commission, जो कि पब्लिक लाइफ में वैल्यूज की बात कर रहा है. सो बेसिकली ऑफिशियल से करप्शन की बात हो रही है. तो ये जो रोल है स्पेसिफिकली विजिलेंस कमीशन का है. दैट्स व्हाई थर्ड इज आल्सो रॉन्ग हियर. द आंसर शुड बी डी, है ना. नन इज करेक्ट हियर. So here the answer is D, none. So again I think ये लग सकता है इजी क्वेश्चन, बट काफी चांसेस है कि इसमें से आप एक कहीं पे गलत कर देंगे. So we are again assuming that this is a difficult question. 79. Which of the following international convention have been ratified by the India? We have discussed this question, and I think there is some issue with the setting of the option, because if we see, some of these conventions have been ratified by the India. Some have been not ratified, like sir will tell. हम लोग अगर देखें सर इसमें, तो फर्स्ट जो है एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कन्वेंशन, हमने जो सोर्सेज देखे हैं इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है. एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इंडिया ने इसको भी रेटिफाई किया है. ये जो आपका थर्ड वाला है इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ ऑल माइग्रेंट वर्कर्स, इंडिया ने इसको रेटिफाई नहीं किया है. जेनेवा कन्वेंशन रिलेटिव टू द प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियन पर्सन्स इन टाइम ऑफ वॉर, इंडिया ने इसको रेटिफाई किया है. कन्वेंशन ऑन रिडक्शन ऑफ स्टेटलेसनेस, इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया है. So ideally, as per us, here the answer should be 3 and 5 only. But here, since this particular option is not given, we think that this particular question will mostly be dropped by the UPSC. Unless there is something which is deeper, which we might have missed, very specific about these conventions. जितना हम लोगों ने study किया है, this should be the answer. In Geneva Convention, there are 4 Geneva Conventions, and India has ratified all the 4 Geneva Conventions. जितना हमने sources देखे हैं, चारों को किया है. This is the fourth one, protection of civilian persons in time of war. So fourth is correct, first is correct, second is correct, third and 5 is incorrect. Answer should be in 3 and 5, which is not given the option. This should mostly be dropped by the UPSC, we think. Again, अगर आप एग्जाम हॉल में है, ये अनडूएबल क्वेश्चन है. कन्वेंशन को भी इतने स्पेसिफिक कन्वेंशन हमें बिल्कुल भी याद नहीं होंगे. इनमें से मोस्टली तो हमें पता भी नहीं होगा कि ऐसे कुछ कन्वेंशन एग्जिस्ट करते हैं इन द वर्ल्ड, राइट? सो दिस इज अगेन अनडूएबल क्वेश्चन, वी थिंक. तो वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. Next. Consider the following statement with respect to the Artificial Intelligence Impact Summit 2026 held in New Delhi. AI Summit से लगातार क्वेश्चन आ रहा है. लास्ट ईयर भी AI Summit से क्वेश्चन आया है, इस बार AI Summit से फिर से क्वेश्चन आया है, जो न्यू दिल्ली में हुई थी. The summit's intellectual framework was based on 3 foundational sutras: pupil, progress. The issue is with this statement, planning. So sir, here the point should be planet, people, planet and progress. बहुत prominently था, हमने भी कवर किया था. अगर आपने ये टॉपिक कवर किया है, you should get this right कि ये wrong है यहाँ पे. People, planet and progress होगा. The preamble of the summit stresses democratizing AI resources, which acknowledges the Charter of Democratic Diffusion of AI as a binding framework. Everything is right in this statement, but this is not binding. This word makes this statement wrong. The New Delhi Declaration on AI Impact was structured around 7 chakras, which included access for social empowerment, AI for science, and secure, trusted artificial intelligence. Again, this was easy. 7 chakras हम लोगों ने क्लास में भी कवर किए थे. आपने जहाँ से भी पढ़ा है, आपने definitely 7 chakras पढ़े होंगे, उसमें से ये सारे हैं. So answer should be 3 only. As per us, this is a easy question, है ना, because simple है. बहुत ज्यादा न्यूज में था, एक्सपेक्टेड था क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन आया, और बाइंडिंग वगैरह देख के आप सेकंड हटा सकते थे, तो ये डुएबल क्वेश्चन माना जा सकता है. Next. Which of the following connectivity project is a part of cooperation between India and the ASEAN member countries? Kaladan Multimodal Transport. This has been in news since years. IMT Trilateral Highways, Agartala Akhora Rail Link. So except 3, this is between India and Bangladesh. Now all the other 2, इसमें कहीं ना कहीं आसियन कंट्रीज इन्वॉल्व हैं. आप देख सकते हैं इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड. कालादान में भी आपके म्यांमार, थाईलैंड वगैरह इन्वॉल्व हैं. So answer should be 1 and 2. This is an easy question directly, right? It is doable. जब हम मेंस में IR के आंसर राइटिंग देखते हैं, कनेक्टिविटी डिप्लोमेसी की बात करते हैं, आशियान रीजन डिप्लोमेसी की बात करते हैं, ये 3 प्रोमिनेंट एग्जांपल है जो हमेशा हम मेंस में भी कोट करते हैं. Correct sir. This is the answer A. 82. So match the following है यहाँ पे. Project supported by India, कौन सी कंट्री में है. अब देखिए यहाँ पे कुछ तो आपको पता होंगे. जैसे मांग देचू जो है, हमें पता है दिस इज इन द भूटान. हाइड्रो प्रोजेक्ट है इन भूटान.
सो ए का यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ए एंड डी आर गॉन। फिर अगर हम लोग देखें यहाँ पे बाकी जो 3 हैं, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू नो, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम ही देखे हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। सो 2 ऑप्शन के बाद डिफिकल्टी होगी। अब ऑप्शन के हिसाब से जाएं, सो डी का 1 हो गया ऑटोमेटिकली, दैट इज मालदीव्स। रेस्टोरेशन ऑफ स्टोर पैलेस एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एट डिकोया। सो यहाँ पे डाउट हो सकता है, हियर द करेक्ट आंसर इज बी, राइट। सो ये जो आपका स्टोर पैलेस है दैट इज अफगानिस्तान, तो बी का 2 होगा। एंड ये जो डिकोया है दिस इज इन श्रीलंका, तो सी का आंसर 4 होगा। सो दिस 3 ऑप्शन बेसिकली इट मेक्स इट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। ऑल्दो हम लोग 2 तक पहुंच सकते हैं, बट उसके बाद ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। 83 Which of the following items of defense hardware are manufactured in India? Sukhoi 30 MKI fighter jets, T-19 Mk3 tanks, Akula class submarine. This is indeed a very difficult question to know exactly the hardwares of which of them is being produced. इसके लिए हमें भी काफी सर्च ही करना पड़ा था। तो हियर द आंसर इज 1 एंड 2। हम लोग जो सुखोई फाइटर जेट्स हैं, ये HAL मैन्युफैक्चर कर रहा है नासिक। इंडीड इसकी जो है इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। T-90 टैंक जो है, इसको हम लोग भीष्म टैंक भी बोलते हैं, इट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन चेन्नई बाय दी हेवी व्हीकल फैक्ट्री HVF। बट ये जो अकूला क्लास सबमरीन है, दिस इज न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, दिस इज बाय रशिया। So India has taken these submarines on lease from Russia. We are not manufacturing these submarines in our country, right? So third को eliminate करेंगे, बाकी जो 2 हैं 1 and 2 वो यहाँ पे ये आंसर होगा। But again very difficult to know exactly. So again we are classifying this as a difficult question. Answer is A 1 and 2. 84. Consider the following statement about platforms for multilateral cooperation. The Colombo process is a regional consultative process in which member states take binding decision by consensus. Colombo process हम usually पढ़ते हैं जो IR में भी और इंटरनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी कोलंबो प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इंडो पैसिफिक इंडियन ओशन स्ट्रेटेजी के कॉन्टेक्स्ट में is a regional consultative process, right, which member state takes binding decision by consensus. The only issue is that we cannot take binding decision, and we do not take binding decision in this Colombo process. Yes, this is a consultative process, but it is not binding. लॉजिकली भी देखिए IR में कुछ भी होता है जनरली नॉन बाइंडिंग होता है। इस तरह के कंसल्टेटिव प्लेटफॉर्म्स पे बाइंडिंग डिसीजन मेकिंग नहीं होती है कभी भी, तो उस लॉजिक से भी 1 शुड बी रॉन्ग हियर। सेकंड, The Abu Dhabi Dialogue is a voluntary, non-binding consultative process among Asian countries of labor origin and destination to facilitate regional cooperation on contractual labor mobility. सब कुछ ठीक लग रहा है सर इसमें, कि नॉन बाइंडिंग है। अबू धाबी की बात हो रही है, मिडिल ईस्ट, हमें पता है कि इंडिया का बहुत सारा लेबर जाता है, साउथ एशिया का बहुत सारा लेबर जाता है मिडिल ईस्ट में। सो अबू धाबी डायलॉग नाम बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज मिडिल ईस्ट में ही है, एंड लेबर ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंट्रीज के बीच में डायलॉग है, तो सेकंड माइट बी राइट, सेकंड इज The करेक्ट। Global Forum for Migration and Development, created upon the proposal of a former UN Secretary General, is a voluntary forum whose decisions are non-binding in nature. अब सर देखिए यहाँ पे नॉन बाइंडिंग तो समझ में आता है कि कोई प्लेटफॉर्म है, दिस इज नॉन बाइंडिंग, बट क्या ये यूएन सेक्रेटरी जनरल के प्रपोजल पे ही बना है या किसी और के प्रपोजल पे बना है, दिस वी डोंट नो, है ना, एग्जाम हॉल में वी डोंट नो। सो इसलिए दिस क्वेश्चन अगेन बिकम्स डिफिकल्ट। आप यहाँ तक तो पहुंच गए, बट ये वाला क्वेश्चन आप थर्ड स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर पाओगे शायद। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट एक्चुअली, इट वाज कोफी अनान, है ना, यूएन सेक्रेटरी जनरल, who had proposed to form this particular forum on migration and development, and that's why the answer is 2 and 3. So just because of this third statement, ना, we think that this is again a difficult question. क्योंकि आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं See, the बेसिकली। purpose is that to have a healthy discussion. बड़े आराम से कह सकते हैं कि इतनी सारी डिटेल दे रखी है तो ये आंसर सही होगा, but this is not the purpose. The actual purpose is कि हम लोग एक्चुअल एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअल एग्जाम एनवायरनमेंट में डाउट आता है कि फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल ने स्टार्ट किया है, फिर किसी और का प्रपोजल था, सो इट मेक्स दिस क्वेश्चन अ डिफिकल्ट वन। नेक्स्ट देखते हैं, 4 यूएन बॉडीज दी हुई हैं, पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज ट्वाइस। देखिए इसमें से कुछ तो न्यूज में था, जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को आई रिमेंबर 2-3 इयर्स बैक नोबेल प्राइज मिला था, बट कितनी बार मिला है और किस बॉडी को कितनी बार मिला है, क्या वो एक बॉडी 2 बॉडीज है, अगेन मतलब इन एग्जाम कंडीशंस वेरी वेरी डिफिकल्ट टू नो, है ना। एक एक बात हो सकता है मिला हो, बट किसको 2 बार मिला है हम नहीं बता सकते हैं।
इसका अगर हम लोग आंसर देखें, सो इट इज ओनली दिस थर्ड बॉडी, यूएन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज, जिसको 2 बार मिला है, इन 1954 एंड 1981। बाकी सब बॉडीज को एक एक बार मिला है। इसको 2020 में मिला था, चिल्ड्रन फंड को 1965 में मिला है, आईएलओ को आपके 1969 में मिला है। सो ओनली वन बॉडी हैव बीन अवॉर्डेड ट्वाइस, एंड व्हिच इज दिस थर्ड ऑप्शन, आंसर इज ए। सो अगेन आई थिंक एग्जाम में आई वुड हैव लेफ्ट दिस क्वेश्चन, नाउ देयर इज नो वे यू कैन रीच दिस आंसर। तो अगर आप जैसे कोचिंग इंडस्ट्री में फॉलो करते हैं कुछ तुक्कों का लगाने का मेथड वगैरह, तो आप शायद सोचेंगे 4 में से 2 लगा दें, बट दैट वुड हैव बीन रॉन्ग हियर। 4 में से यहाँ पे एक आंसर है। सो यहाँ पे नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज आपका, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, राइट? सो आंसर इज ए, अगेन वेरी वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, 86th। Match list 1 with list 2 and select the answer using the code given below. Yunmil, I think सर ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपको देखते ही छोड़ देना ये चाहिए। देखते ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो पूछ रहे हैं कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस की ईयर कौन सा है। पहली बात तो ये एब्रिविएशन देख के आपको कंट्री से समझ में नहीं आएगी किस कंट्री की बात कर रहा है ना? यहाँ पे फिर भी सोच सकते हैं यूएस मिशन इन लीबिया की बात कर रहा है, बट व्हाट इज दिस कैट THET? इम्पॉसिबल टू डू अनलेस आपने IIM में PhD वगैरह किया हो। So I don't think this question is doable in exam condition. Here the actual answer is B, that this is actually Libya, UN mission in Libya. This was in the period of 2003 to 18. Second is Central African Republic, and यहाँ पे जो the period was 2007 to 10. Third is Haiti में है ये, H is for Haiti, and the period was 2004 to 17. And fourth one is East Timor, and the period is 2002 to 2005. सो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू नो कि ये क्या एब्रीवेशन है और कौन से ईयर में है। सो वेरी वेरी डिफिकल्ट, डायरेक्टली देख के छोड़ने वाला क्वेश्चन था ना, अनडूएबल क्वेश्चन। आंसर इज बी। 87th। Match list 1 with list 2 and select the answers using the code given below the list. BIMSTEC सेंटर एस्टेब्लिशमेंट दी गई है, उनकी लोकेशन दी गई है। BIMSTEC कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी, BIMSTEC एनर्जी सेंटर, BIMSTEC सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, BIMSTEC टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। अब देखिए यहाँ पे आई थिंक पहले क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बिम्स्टेक के वर्टिकल्स पिलर्स के बारे में, बट इस साल इन्होंने पूछा है स्पेसिफिकली सेंटर्स कहाँ पे हैं, और उसमें भी वो कंट्री नहीं पूछ रहा है, एग्जैक्टली लोकेशन पूछ रहा है, राइट? स्पेसिफिकली सिटीज पूछी गई है। सो अनलेस यू वेरी वेल नो कि भाई कौन सा सेंटर की कौन सी सिटी है, आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे एग्जाम और, बिकॉज कुछ भी लॉजिक लगाने जाओगे वो ऊपर नीचे हो सकता है आपको लॉजिक। अब जैसे यहाँ पे हम लोग आंसर देखें, सो आंसर इज सी। तो आपका ए का आंसर 4 है ना, कल्चरल इंडस्ट्रीज ऑब्जर्वेटरी, दिस इज इन थिम्पू। देन बी का 2 है, एनर्जी सेंटर इज इन बेंगलुरु। सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट, सी का आंसर इज 1, इट इज इन नोएडा। टेक ट्रांसफर, इट इज कोलंबो। सो ये आंसर इज सी। कोई बोल सकता है कि जो 7 पिलर्स हैं उनके बेसिस पे कर सकते हैं, बट 7 पिलर बिम्स्टेक और कौन से पिलर पे कौन सी कंट्री लीड कर रही है ये याद नहीं रहता एग्जाम एनवायरनमेंट में कि कौन सा पिलर पे कौन सी कंट्री लीड कर रही है। सो आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट। इट इज डिफिकल्ट, यस सर, इट इज डिफिकल्ट। इट इज अगेन अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगेन अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, इन्होंने स्पेसिफिकली पूछ लिए हैं कि इंडियन आर्मी के कॉर्प्स और उनकी लोकेशन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। सो अनलेस आप डिफेंस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, या फिर अगर आपका डिफेंस का बैकग्राउंड है, मतलब ये जान पाना कि कौन सा कॉर्प्स कौन सा हेडक्वार्टर है, अगेन आई थिंक इट इज वेरी वेरी इंपॉसिबल इन एग्जाम कंडीशन में। तो अगेन ये क्वेश्चन मैं देखते साथ छोड़ूंगा। सो अगेन नॉट डूएबल आई थिंक, बट अगेन हियर द आंसर इज फोर्थ वन। इन्होंने नॉट करेक्ट पूछा था, सो फर्स्ट इज करेक्ट। थर्ड कॉप का हेडक्वार्टर दीमापुर है, फोर्थ कॉप का तेजपुर है, 14th कॉप का लेह है, 33 कॉप का श्रीनगर नहीं है, इट इज सुकना इन बंगाल। तो नॉट करेक्ट हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। सो ये भी अगेन छोड़ने वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखें 89th। Which of the following statement with respect to revamped Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan is are correct? The period of its implementation is 1st April 2000. 21 to 26, चलिए मानते हैं नहीं पता है सर, आगे बढ़िए। The key objective of the revamped RGSA is to develop the government's capabilities of the Panchayat Raj institutions to deliver on the sustainable development goal. जेनरिक स्टेटमेंट है सर, माना जाएगा। लोकलाइज्ड एसडीजी की हम लोग वैसे भी बात कर रहे हैं, Localization of SDGs. The share of the central funding for revamped RGSA is 100% for all states and union territories.
सर देखिए, अगर ये नहीं भी पता है तो जनरली स्कीम्स में ऐसा नहीं होता है, आइदर इट इज 60-40 और इट इज 90-10, राइट? सो यहाँ पे भी जो है 60-40 फंडिंग पैटर्न है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब देखिए, हम लोग यहाँ थर्ड का एलिमिनेट कर सकते हैं, बट ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, अब इन्होंने स्टेटमेंट, ये जो फ्रेमिंग है इतना क्लोज बनाया हुआ है, ये बात कर रहे हैं 21 से 26 की, और एक्चुअल जो आपका आंसर है दैट इज फ्रॉम बेसिकली 1 अप्रैल 2022 टू 26, राइट? तो एक साल बहुत ज्यादा क्लोज है। अगर आपने पढ़ा भी है, मान लीजिए एग्जैक्टली कि 22 से 26 में है, तो एग्जाम हॉल में काफी हाई चांसेस हैं कि आप इसको भी सही मान लोगे, बिकॉज इतना क्लोज ऑप्शन बनाया गया है। सो ऑल्दो दिस इज रॉन्ग एंड आंसर शुड बी बी, बट इतना क्लोज स्टेटमेंट है कि काफी चांसेस है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में अगेन गलत हो जाए। सो वी आर अगेन क्लासिफाइंग इट एज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट नंबर 1। और बहुत ज्यादा स्कोप भी नहीं है एलिमिनेशन का, ऐसा नहीं है कि आप एक को हटा के पहुंच गए, आपको तीनों पता होना चाहिए बेसिकली ना। 2 आपको पता है तो भी आपने एक ही एलिमिनेट होगा विच इज सी, तब भी आप 3 ऑप्शन में फंस जाओगे यहाँ पे, राइट? ठीक है, नेक्स्ट फाइनली सम रिलीफ आई Of the थिंक। following countries are member of European Union? Select the answer using given below: Belarus, Poland, Germany, Switzerland. This is the kind वन of ऑफ द that can इजीएस्ट be done. क्वेश्चन आई थिंक, राइट? बेलारूस, वी नो इट इज वेरी क्लोज टू रशिया, Russia. सो बेलारूस तो नहीं है ईयू का पार्ट। पोलैंड एंड जर्मनी है। स्विट्जरलैंड हमें पता है कि इट इज अ न्यूट्रल कंट्री, है ना, जनरली, तो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। आंसर इज 2 and 3, सो इट इज अ इजी क्वेश्चन, ये बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। 91st, Match list 1 with list 2 and select the answer using the code given below. Different kind of notices जो इंटरपोल इशू करता है और उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, किस किस चीज के लिए कौन सा नोटिस आइडेंटिफाई किया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्यों आया, हम लोगों ने जो लास्ट ईयर करंट अफेयर्स की क्लासेस पढ़ी थी उसमें मैंने पढ़ाया था कि फॉर द फर्स्ट टाइम अ सिल्वर नोटिस हैज बीन इशूड बाय इंटरपोल। तो ये लास्ट ईयर का करंट अफेयर्स है, लगभग जनवरी 2025 का, एंड उसमें द आंसर वाज कि भाई सिल्वर नोटिस इज फॉर दी असेट्स। तो असेट्स कहाँ पे दिए गए हैं इसमें? टू आइडेंटिफाई एंड ट्रेस क्रिमिनल असेट्स। ए का आंसर जो है वो 4 हो जाएगा, सीआईडी में से एक आंसर है। ब्लैक नोटिस, अगर आप तीनों को रीड करोगे तो सबसे ज्यादा क्लोज जो है ब्लैक नोटिस के वो होगा अनआइडेंटिफाइड बॉडीज, डेड बॉडीज हैं, उसके लिए हम लोग ब्लैक नोटिस करेंगे, है ना, सबसे ज्यादा डार्क ही लग रहा है बेसिकली। तो कुछ लॉजिक से हम लोग पहुंच सकते हैं, सी का आंसर 1 होगा, एंड सो अवर आंसर विल बी हियर सी, राइट? ए का 4 है एंड सी का 1 है। सो अगर आपने पढ़ा है सिल्वर नोटिस के बारे में देन इट इज समवॉट डूएबल, बट अगर आपने नोटिस कभी नहीं पढ़े हैं तो आप मैक्सिमम यहाँ तक पहुंच सकते हैं कि ब्लैक नोटिस वुड बी फॉर दी बॉडीज, राइट? सो सी का अगर 1 है तो बी और सी में आप यहाँ पे आके आप फंस जाएंगे। जैसे कि जो ये स्टूडेंट है इन्होंने भी बी और सी मार्क किया हुआ है कि इनमें से कोई एक आंसर होगा, बट इसके बियॉन्ड थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज सिल्वर नोटिस, ग्रीन नोटिस वगैरह, तब भी हम लोग कर पाएंगे। सो अगेन आई वुड से इट इज अ मीडियम डिफिकल्टी लेवल क्वेश्चन, क्योंकि न्यूज में था, बहुत प्रोमिनेंटली न्यूज में था लास्ट ईयर, तो शायद आप कर सकते हैं। और ब्लैक ये थोड़ा आप लॉजिक लगा सकते हैं, अदरवाइज डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो आंसर हियर वाज सी, राइट? 92nd, Which of the following statements in relation to Nirantar, National Institute for Research and Application of Natural Resources to Transform, Adapt and Build Resilience, a platform of institutions under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? निरंतर न्यूज में था, पढ़ा भी था सर, आपने भी पढ़ाया था क्लास में। डेफिनेटली यस। बट द थिंग इज दैट इतने डिटेल में किसी ने नहीं पढ़ा था कि निरंतर के अंदर उसके वर्टिकल्स के बारे में क्वेश्चन आ जाएगा। हमने सर खाली ये पढ़ा था कि निरंतर इट इज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कोलैबोरेशन ऑन द एनवायरमेंटल मैटर्स, दैट्स इट। इतना एक्सपेक्टेड था कि इतना पूछेंगे, बट इन्होंने स्पेसिफिकली वर्टिकल पूछे हैं। सो देयर आर 4 वर्टिकल्स अंडर इट, एंड नॉट इवन वर्टिकल्स, दे आर आस्किंग कि भाई कौन से वर्टिकल को कौन सा इंस्टीट्यूशन लीड कर रहा है, राइट? तो अगेन मतलब दिस इज अ अनडूएबल क्वेश्चन आई वुड से, नहीं पता हो सकता है एग्जाम हॉल में। सो यहाँ पे बट अगर हम लोग आंसर देखें तो फर्स्ट वन इज करेक्ट, इकोसिस्टम सर्वे के लिए जो है लीड इज बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता। सेकंड वन इज रॉन्ग, रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, इसके लिए आपका आईसीएफआरई, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन, देहरादून, इट इज द लीड इंस्टीट्यूशन। थर्ड वन इज राइट हियर, कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए भी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। सो आंसर हियर इज बी 1 and 3, बट अगेन आई वुड से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड डूएबल क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 93, The Chancellor of Federal Republic of Germany visited India in January 2026. Which of the following is are not correct in terms of outcomes of this visit? It is very, I think,
Very rarely such type of questions are asked कि एमओयूज कौन विजिट्स से में साइन हुए एमओयूज हैं? कौन से हुए हैं, कौन कौन सी चीजें साइन हुई हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में पूछी जाए। सो उसमें भी नॉट करेक्ट इन्होंने पूछा है, पर हम लोग देखें यहाँ पे। सो साइनिंग, अब अनलेस आपने स्पेसिफिक एमओयूज की लिस्ट पढ़ी है। अब देखिए, हम लोग जो भी मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं करंट अफेयर्स की, कभी भी हम लोग एमओयूज नहीं पढ़ते हैं कौन कौन से साइन हुआ। आप मैक्सिमम पढ़ोगे कि किसका विजिट हुआ है, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, व्हाट आर द बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्टेड, या कुछ बहुत सिग्निफिकेंट होता है हम लोग वो पढ़ते हैं। छोटे छोटे एमओयू हम लोग जनरली नहीं पढ़ते हैं। अब इसमें भी अगर आप बहुत स्पेसिफिक देखो, उन्होंने क्या पूछा है, एमओयू बिटवीन आयुर्वेदा इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग। मतलब आयुर्वेदा तक बात होती तो मान सकते थे कि आयुर्वेदा पे एमओयू साइन हुआ है, लॉजिकल है। बट किसके बीच में हुआ है, स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी नेम पता नहीं हो सकता है। अब जैसे यहाँ पे शायद मैं ठीक मान लेता, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज इट इज दी चैरिट यूनिवर्सिटी इन जर्मनी। सोचिए, इन्होंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम गलत दिया हुआ है, राइट? तो ये नहीं पता हो सकता है कि इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग और चैरिट यूनिवर्सिटी। सो वन इज रॉन्ग। एमओयू इन यूथ हॉकी डेवलपमेंट, हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन, दिस इज करेक्ट। बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म और इंडो पैसिफिक, दिस इज करेक्ट। थर्ड काफी ज्यादा जेनरिक है, इंडो पैसिफिक फोकस में है इंटरनेशनल रिलेशंस में, तो थर्ड मान सकते हैं इंडिया जर्मनी ने साइन किया होगा। ओपनिंग ऑफ ए ऑनरी काउंसिल ऑफ जर्मनी लखनऊ। अब काउंसिल तो खोली है, बट कहाँ खोली है, सिटी का नाम पता होना, दिस इज डिफिकल्ट। अब जैसे यहाँ पे द एक्चुअल आंसर इज अहमदाबाद, सो अवर आंसर here would be 2 and 3, बट इन्होंने चूंकि नॉट करेक्ट पूछा है, सो आंसर विल बी 1 and 4, राइट? सो करेक्ट आंसर here will be B, 1 and 4. सो अगेन आई वुड से वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, अनलेस हमने चीजें पढ़ी हैं हम लोग नहीं कर सकते हैं। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ध्रुव 64, Which of the following statements about Dhruv 64 are correct? It is the third chip fabricated under the DIRV program with an overall aim to enable the creation of microprocessors for India. Second, it is India's first homegrown 1 GHz 64-bit dual-core microprocessor. आई वुड से अगर आपने मंथली मैगजीन में पढ़ा है, आई वाज जस्ट सीइंग दैट दिस वाज कवर्ड इन पीआईबी, so this is in PIB, many magazines might have covered this thing, so then you might do it. Plus Dhruv 64 bits, so second one looks like a correct statement if we know it is the first homegrown. But whether it is the third chip, fifth chip, 10th chip, that might be something जो शायद लोगों को ना पता हो। बाकी तो ठीक ही है, इसके अंदर यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था, but this is actually the correct answer. Answer is C. So again, in this question, if you have read it, you can do it. Otherwise, na undoable. So I would say it is a medium difficulty level question. ठीक है, next देखते हैं। The Bureau of Indian Standard recently introduced a national standard to test and assess bomb disposal system. Which of the following statements with regard to this system are correct? The new standard is known as IC 19445 2025. It will improve interoperability of equipment across agencies. This is something This is very generic. statement, correct. We don't know about anything about this. It might be correct or might not be correct. It was developed by TBRL, DRDO in collaboration with the 30th Central Scientific Research Institute, Russia. सर देखिए, यहाँ पे ये नंबर जो है, सो अगर आपको स्टैंडर्ड का नंबर पता है, जो कि वेरी लाइकली है कि नहीं पता होगा, बिकॉज हम लोग जनरली स्टैंडर्ड पढ़ सकते हैं कि ऐसा कुछ रिलीज हुआ है, बट व्हाट इज द नंबर एग्जैक्टली, कौन सा ईयर है, 2025 है, 24 है, 23 है, दिस ही माइट नॉट नो, बट हियर दिस इज द राइट आंसर। थर्ड स्टेटमेंट में वेदर दिस इज द करेक्ट इंस्टीट्यूट या कुछ और नाम है इसका, TBRL है, क्या है, यहाँ पे एक तो कंफ्यूजन हो सकता है। एंड सेकेंडली, क्या ये किसी कंट्री के साथ कोलैबोरेशन में बना है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन हो सकता है। सो इफ यू सी द आंसर, दिस इज इंडीड करेक्ट, इट इज बाय TBRL एंड इट इज नॉट इन कोलैबोरेशन विद रशिया, इट इज कंप्लीटली इंडिजिनस। एंड देखिए, कोई भी स्टैंडर्ड्स बनते हैं इंडिया में, BIS वगैरह बनाता है, तो वो इंडिजिनस ही बनते हैं, आपस में कोलैबोरेशन होता है। आप इंडियन स्टैंडर्ड बनाने के लिए किसी कंट्री से कोलैबोरेट नहीं करते हो जनरली, राइट? So from that logic also, this third statement is wrong. Second is generic, that should be right. So third wrong है, second generic है। आप शायद यहाँ तक पहुंच पाते अगर आपको फर्स्ट नहीं भी पता था। अगर आपको थर्ड रॉन्ग मानते हो, सेकंड को ठीक मानते, बट अगेन एग्जाम में इतना सोच पाना और ये इंस्टीट्यूशन से आप ये क्वेश्चन देख के शायद बहुत डाउटफुल और बहुत वो हो जाते हैं। सो आई वुड से अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेस लाइकली कि आपने शायद सही करा हो। 96th, This is a very different kind of question.
X born in the United Kingdom was conferred the Nobel Prize in 2025. They have just mentioned Nobel Prize. Yes. ये भी नहीं They बताया not किस mention the category also. category of Nobel Prize. He was a professor in the American University when this prize was announced. Identify X. कोई ऐसा साइंटिस्ट जिसका बर्थ हुआ है यूके में पर वो प्रोफेसर है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में. बस ये इतनी इन्फॉर्मेशन है जो प्रोवाइडेड है. देखिए नोबेल प्राइज हर साल कम से कम 3-4 मिलते हैं. फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, नोबेल पीस प्राइज होता है. अब हर प्राइज में कम से कम 3-4 प्रोफेसर्स होते हैं, शेयरिंग में मिलता है हमेशा. तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 10+ नेम्स की. 10+ लोगों को हर साल नोबेल प्राइज मिल रहा है. अब उसमें से ये पूछ रहे हैं कि एक नाम बताओ जो कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है बट बॉर्न इन यूके. तो आई मीन अनलेस आप बहुत ज़्यादा साइंटिफिक उसमें इंटरेस्ट है, आप बायोग्राफीज फॉलो कर रहे हैं साइंटिस्ट की, मैक्सिमम चांसेस है हम लोग ये पढ़ के जाएं कि नोबेल प्राइज किस चीज में मिला है. आप पढ़ सकते हो किन लोगों को मिला है और उनका किस काम चीज क्या में, था, उनका काम काम क्या क्या था. था. काम पढ़ोगे, आप ये नहीं पढ़ोगे कि वो बॉर्न कहाँ पे हुए हैं और किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं. तो अगेन आई वुड से कि आप शायद ये क्वेश्चन छोड़ देते, मैं भी शायद ये क्वेश्चन छोड़ देता. बट हियर द आंसर इज जॉन क्लैक. ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर द क्वांटम टनलिंग इफेक्ट in 2025 and he was born in UK in Cambridge. So again I would say a very difficult question. The next 97. is related to Tennis. Grand Slam tennis tournament. So they have asked cricket, they have asked chess, they have asked Kho-Kho. Hockey also. Hockey also. So every year they are asking different sport. So it becomes very difficult if you are interested in tennis or if you are interested in chess, then it becomes easy for you. But to cover all the tournaments of all the sports, it is very difficult. Says that which of the following statement with regard to the Grand Slam tennis tournament is are correct. The tournaments have a shared governance structure establishing the partnership among the 4 Grand Slam tournaments. थोड़ा सा जेनरिक लग रहा Generic है, है. नहीं भी पता है तो मान सकते हैं कि ठीक है एक बार के लिए. 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं तो पता है कि हाँ जितने भी ओपन टूर्नामेंट होते हैं they are open for entry to all internationally ranked tennis players above the age of 14. सर देखिए यहाँ पे दो डाउट्स हैं. एक तो कट ऑफ एज क्या है, 14 है, 16 है, 18 है. अगर ये पता है नहीं पता है तो उस पर डिपेंड करेगा. सो यहाँ पे दिस इज करेक्ट. सेकेंड, मान लीजिए अगर नहीं पता है तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखा है ओपन फॉर एंट्री टू ऑल इंटरनेशनली रैंक टेनिस प्लेयर्स. देखिए ऐसा नहीं होगा. हम लोग बात कर रहे हैं ग्रैंड स्लैम की. जैसे चेस भी होता है तो आपकी FI FIDE की रैंकिंग्स होती हैं, रेटिंग्स होती हैं. आप एक रेटिंग के अबव होते हैं तभी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है. सिमिलरली जो है यहाँ पे आपकी ATP रैंक्स होती हैं टेनिस में, राइट. यू हैव टू बी अबव अ सर्टेन रैंक टू पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट. इट कैन नॉट बी लाइक कि 14 साल से ऊपर जो भी है ऑल बिकम एलिजिबल, ऑल द प्लेयर्स. तो कोई भी पहुंच जाएगा फिर कि हम एलिजिबल हैं, राइट. तो सेकंड स्टेटमेंट जो है थोड़ा सा एक्सट्रीम लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑल वर्ड. लॉजिकली भी नहीं लग रहा है हमें कि सबको अलाउ करेंगे 14+ में. तो सेकंड इज रॉन्ग. आप सेकंड हटाएंगे, आपका आंसर जो है यहाँ पे 1 ओनली आ जाता है. थर्ड में अगर देखें वैसे तो आंसर आपका आ गया, बट देयर इज अ लिमिटेशन ऑन नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स अ प्लेयर में रिसीव टू compete इन अ ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट. अगेन आई मीन नहीं पता है तो अब नहीं पता है, कुछ नहीं कर सकते हैं. दिस इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशन. whichever country is organizing this grand slam, it depends on them कि वो किस प्लेयर को कब वाइल्ड कार्ड एंट्री दे सकती है. So there is no limitation as such here. But So this answer is C. statement seems to be right. अगर कोई पहली रीडिंग में से स्टेटमेंट रीड करे कि हाँ कुछ ना कुछ तो लिमिटेशन होगी वरना हाँ. इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं. बट Yes. अगर लॉजिकली अगर सुनने में हाँ, थर्ड करेक्ट लग रहा है हमें. अगर गलती हुई है तो इट इज अ जेन्युइन मिस्टेक. Yes. So because of all these reasons, फर्स्ट आप ठीक कर भी दोगे तब भी सेकंड और थर्ड में फंस जाओगे. एज वेज में ऑल में अगर आपको दिखा नहीं दिखा ना, यहाँ पे थर्ड में तो आइडिया नहीं लगेगा क्या है. सो अगेन दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन. 98th. Which one of the following pairs of semiconductor plants in India and their location is not correctly matched? CJ Power and Industries, Gujarat; Tata Semiconductor, Assam; HCL Foxconn Joint Venture, India, Madhya Pradesh; SysSem Private Limited, Odisha. Again, मतलब I would say if I would have been sitting in this exam, I would have again left this question straight, right? कोई आइडिया नहीं है. 4 स्टेट्स दिए हुए हैं, बहुत क्लोज भी हो सकते हैं ऑप्शंस, और उसमें भी नॉट करेक्ट पूछा है. ऐसा नहीं है करेक्ट पूछ रहा है. तो उसमें से 3 करेक्ट हैं, एक नॉट करेक्ट है, राइट. सो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है. HCL फॉक्सकॉन का MP में नहीं है, ये यूपी में है. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज सी. बट अगेन टू फैक्चुअल, टू डिफिकल्ट. So mostly जब मेंस के लिए पढ़ते हैं 2 प्लांट्स एनवीडिया इन गुजरात Yes. एंड टाटा इन असम, इसकी बात करते हैं. Yes. बाकी 3 हमने भी पहली बार ही सुने हैं अभी. तो अगेन आई थिंक नॉट डूएबल आप छोड़ सकते थे बिल्कुल.
ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. Which of the following statements with regard to India's indigenous new high resolution weather model, the Bharat forecast system, is are correct? First, its objective is to generate forecast at the panchayat cluster level. Right statement. क्योंकि ultimately जो objective है decentralized information dissemination होना चाहिए, तभी effective disaster management या फिर preparation हो पाएगी. तो जो governance का focus है that is on decentralization and localization. So this statement seems correct from that point of view. Yes. It was developed by IIT Delhi. So yes, sir, this is wrong because it is by IITM Pune, Indian Institute of Tropical Management Pune. Second wrong है, first ठीक है. Answer is A. And also many initiative like they are taken by IITM Institute of Tropical Meteorology. Many initiative related to weather modeling etc. they are taken by IITM. So but again जैसे यहाँ पे although this is a prominent news, अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लेंगे, नहीं पढ़ा है तो again becomes difficult in the exam condition. So I would again classify this as a medium to difficult question. Difficult. Last question देखते हैं. Film Boong. The film has recently won the British Academy of Films and Television Arts Award in Children's and Family Film category. The film is directed by Lakshmi Priya Devi. This is the first Indian film to win a BAFTA award in Children's and Family Film category. So I think in movies mostly हम चीजें पढ़ते हैं कि इंडिया का ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन क्या रहा है, कौन कौन सी मूवी, उन्हीं जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट मूवीज हैं उनके लिए डिटेल में पढ़ते हैं. बाफ्टा या फिर जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो किस मूवी को मिले हैं. बाफ्टा के लिए आई डोंट थिंक कि इतने डिटेल में हम चीजें पढ़ते हैं कि बाफ्टा में कौन सी मूवी को अवार्ड मिला है. राइट, अगर ये कहीं पे होगा भी मैगजीन में तो आई वुड हैव जस्ट लेफ्ट दिस पर्टिकुलर थिंग. अगर ये मेंशन भी होता तो शायद पढ़ता ही नहीं, बिकॉज यूपीएससी का ट्रेंड नहीं रहा है ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछने का, बट इस साल इन्होंने पूछा है. वेरी हाई चांस कि किसी को आइडिया ना हो, हम में से मोस्ट लोगों को, अनलेस आप फिल्म इंडस्ट्री को फॉलो करते हैं, अवार्ड्स को फॉलो करते हैं तो शायद आपको आइडिया होगा, बट लेस लाइकली. राइट, सो अगेन आई वुड से डिफिकल्ट क्वेश्चन, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन. बट यहाँ पे अगर आंसर देखें तो फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, और आपका जो है थर्ड भी करेक्ट है. आंसर इज ए. बट अगेन ये पता होना चाहिए, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे. सो विद दिस वी एंड द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर. सो एसबीएफसी हम लोगों ने क्वेश्चन वाइज क्लासीफाई भी करा है, इजी है, मीडियम, डिफिकल्ट है. तो हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन है सर वो डिफिकल्ट कैटेगरी में लाया कर रहे हैं. कुछ क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी में है, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन है जो इजी कैटेगरी में आ रहे हैं. सेकेंडली हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, हर साल क्या होता है कि पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन होते हैं 40-45 प्लस, इन सबको जोड़ के. और पॉलिटी चूंकि हम सब लोग पढ़ के जाते हैं, हायर चांसेस कि हम लोग ठीक कर दें. बट अब क्या हुआ है कि पॉलिटी के 5 क्वेश्चन आए हैं, इकोनॉमी के 12 क्वेश्चन है. राइट, सो बिकॉज ऑफ दीज रीजंस जो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इतना हाथ पाँव चला सकते थे उसका जो है नंबर कम हो जाएगा इस बार. बहुत सारे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, मैच दी फॉलोइंग है. देयर इज वेरी लेस स्कोप कि आप अटेम्प्ट भी कर पाए क्वेश्चन को, ना कुछ लॉजिक लगा पाए. तो जनरली लेट्स से अगर हम लोग 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करते थे पेपर में, तो चांसेस हैं कि आप शायद यहाँ पे 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं या फिर आप 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए हैं. सो आई वुड से दिस इज नॉट अ बैड नंबर दिस ईयर. अगर आप 75 to 80 टच कर पा रहे हैं अटेम्प्ट्स में, तो आपको निराश होने की नीड नहीं है कि मैंने कम अटेम्प्ट किए, बिकॉज नेचर ऑफ पेपर वाज लाइक दैट ओनली. राइट, 90 अटेम्प्ट करने वाला पेपर था ही नहीं है. 75 से आप 80 करेंगे, दैट इज गुड इनफ अटेम्प्ट. कट ऑफ वी आर नॉट प्रेडिक्टिंग बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स. सीसेट कैसा रहा लोगों का, हमने तो पेपर बाहर से देखा है, बट लोगों को एग्जाम हॉल में कितना डिफिकल्ट लगा. राइट, बट फ्रॉम व्हाट वी हैव डिस्कस्ड we don't expect cutoff to be very high. In fact, we don't even expect cutoff to be near what it has been the last 1-2 years, which is 90 के around हुआ करता था. तो ये उतना भी नहीं जाएगा. Right, so maybe let's say if we see अगर आपके 70 प्लस भी बन रहे हैं तो आपको निराश होने की नीड नहीं है. आई एम नॉट सेइंग कि 70 के अराउंड कट ऑफ रहेगा. आई एम जस्ट सेइंग कि वी डोंट एक्चुअली नो, बिकॉज पेपर, जो नेचर ऑफ पेपर है, दैट इज वेरी डिफरेंट, दैट इज वेरी टफ दिस ईयर. सो 70 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है हमारी आंसर की से या किसी भी आंसर की से, और यूपीएससी अपनी आंसर की निकाल देगा 2-3 दिन में, उनके आंसर की में आपके नंबर 5-10 नंबर ऊपर हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं. यू माइट एज वेल बी इन द गेम. सो डोंट गिव होप and start preparing for the mains examination. That would be from our side. If I want to add something else, that's all. If you are around that range 70 plus you are doing, this is good score and you should start preparing for mains. Correct. So with this we end this discussion. Thank you.